Hello everyone, I am Deepika and you are watching NIEL, the best place to learn English and develop confidence. अक्सर हमें पकी पकाई चीजें खाने की आदत होती है जिस पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वही बात आती है इंग्लिश में भी। अगर हमें पका पकाया माल मिल जाए वी आर हैप्पी। खाने में भी यही है, रेडी टू ईट लिया, उबाला और डाला। Similarly, when we talk about English, same is the case. So, I have a solution. There is a good news. इंग्लिश में भी रेडीमेड सेंटेंसेस है जिसे हम बोलते हैं पैटर्न्स। सो हमारे कुछ पैटर्न्स हैं जो हमारी इंग्लिश पे बहुत हेल्प करते हैं, वेयर वी डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और हम इंग्लिश भी सीख जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है सेंटेंस बनाने में। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पैटर्न विच कैन हेल्प यू गाइज टू लर्न इंग्लिश इन एडवांस्ड वे एंड इट कैन मेक योर लैंग्वेज इम्प्रेसिव। सो हियर इज द फर्स्ट वन, that is going to or about to, which means होने वाला है। कोई भी काम जब आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, there we use going to or about to. For example, the pattern says subject is a mark plus going to or about to. With that we will use first form and other words. Now if I say I am going to teach you some useful patterns, मैं आपको useful patterns सिखाने वाली हूँ। So I am going to teach you useful patterns. Here I can also say I am going to teach you some advanced English. मैं आपको कुछ advanced English सिखाने वाली हूँ। We are going to learn some useful patterns. हम कुछ useful patterns सीखने वाले हैं। तो जब भी हम present में बात करते हैं ऐसा होने वाला है, we say is a mark going to or about to first form. यही अगर मुझे बात करनी है past की, so I would say was were. And in future we will use will be. So we were going to leave, हम जाने वाले थे, हम बस निकलने ही वाले हैं, we are about to leave, हम निकलने वाले होंगे, we will be about to leave. यहीं पर अगर मैं बात करूँ going to की, so going to ही हमारा बन जाता है gonna. I'm gonna leave, I'm gonna teach you, we are gonna learn English. So gonna, going to or about to means कोई भी काम होने वाला है. So we are going to play cricket. We were going to play cricket. हम क्रिकेट खेलने वाले थे, वो क्रिकेट खेलने वाले होंगे, they will be going to play cricket. So going to or about to means कोई भी काम होने वाला है. In present we use is a mark, in past we use was were, and in future we will be using will be. So let's talk about next pattern. That is fond of. Fond of means शौकीन। जब भी आपको किसी चीज़ का शौक होता है, there we use this pattern fond of. So we will start our sentence as usual with subject. After that we will use is a mark, fond of and ing. So with fond of we will always use ing verb. With first form we will say ing. For example, मुझे पढ़ाने का शौक है. I am fond of teaching. So here I am just adding teaching. If I say he is fond of playing cricket, उसे खेलने का शौक है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है. Now here, if I only say उसे क्रिकेट का शौक है, he is fond of cricket. We will not add any verb here. Now if I say उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, then I would say he is fond of playing cricket. उसे स्विमिंग का शौक है, उसे स्विमिंग का शौक है. We will say he is fond of swimming. उसे इंग्लिश सीखने का शौक है, he is fond of learning English. And if I say उसे इंग्लिश का शौक है, he is fond of English. Now if we talk about in past, we will say was were, and in future we will say will be. Now मुझे गाने सुनने का शौक था, I was fond of listening to music. मुझे गाने सुनने का शौक नहीं था, I was not fond of listening to music. उसे मूवीज देखने का शौक होगा, he will be fond of watching movies. उसे मूवीज का शौक होगा, he will be fond of movies. उसे मूवीज का शौक है, he is fond of movies. उसे मूवीज देखने का शौक था, he was fond of watching movies. So fond of we are using for शौकीन. इसमें जनरली हम अपनी हॉबीज बता सकते हैं, एंड अगर हम वो अब यूज नहीं करेंगे तो वी विल डायरेक्टली एड द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे म्यूजिक का शौक है, उसे म्यूजिक सुनने का शौक है, he is fond of listening to music. So we can tell our hobbies in this impressive pattern.
let's talk about another one. It is able to means योग्य, आप कोई भी काम करने के लायक है, योग्य है या समर्थ है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलने लायक हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलने योग्य हूँ. आई एम एबल टू स्पीक. नाउ हियर वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म. सो पैटर्न से सब्जेक्ट इज अ मार्क प्लस able to first form and other words. So if I say I am able to cook, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खाना बनाने के लायक हूँ, मैं खाना बनाने योग्य हूँ, कोई भी काम करने योग्य. यही अगर हम बात करें पास्ट में, so we will say was and in future we will say will be. So if I have to say वो swimming के योग्य है, he is able to swim, he is able to cook, he is able to sing. I am able to teach, I am able to learn, we are able to learn English. हम सब इंग्लिश सीखने योग्य है. यही अगर मुझे पास्ट की बात करनी है, I will say I was able to cook, I will be able to cook in future. मैं खाना बनाने योग्य होंगी, मैं कुछ भी कर पाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. प्रेजेंट में कुछ कर सकती थी, पास्ट में कर सकूंगी, फ्यूचर में. सो एबल टू आपकी कैपेबिलिटी बताता है, एबिलिटी बताता है दैट यू आर एबल टू डू समथिंग. सो इफ आई हैव टू से मैं खेलने योग्य हूँ, आई एम एबल टू प्ले. मैं खेलने योग्य थी, आई वॉज एबल टू प्ले. मैं खेलने योग्य होंगी, आई विल बी एबल टू प्ले. सो एबल टू टेल्स योर एबिलिटी, योग्यता. यही अगर बात करें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, सो वी विल से अनएबल टू. इन पास्ट इज अमार की जगह सेम वी आर गोइंग टू यूज वॉज वर्ड, एंड इन फ्यूचर वी विल बी यूजिंग विल बी. सो I am unable to cook, मैं खाना बनाने योग्य नहीं हूँ. I am unable to cook, मैं खाना बनाने योग्य नहीं हूँ. If I can say I am unable to make food, same. Instead of cook, we are here using make food. I can say I am unable to swim, I am unable to sing, I am unable to dance. Are you able to do something? So क्या आप कुछ करने योग्य है? So करने योग्य, able नहीं कर सकते हैं तो unable. He was unable to cook. I am able to cook. He will be able to cook. I am able to sing. He was unable to sing. वो सिंग करने योग्य नहीं था, वो खाना बनाने योग्य होगा. He will be able to cook. If I say मैं इंग्लिश बोलने योग्य हूँ, I am able to speak English. मैं इंग्लिश बोलने योग्य नहीं हूँ, I am unable to speak English. यही अगर मैं पास्ट की बात करूँ, I was unable to speak English. I will be unable to speak English. So able करने योग्य, अगर आप कुछ करने योग्य नहीं है, उसमें असमर्थ है, तो वी विल से अनेबल. दे आर अनेबल टू कुक, वो खाना बनाने योग्य नहीं है. दे वर अनेबल टू कुक, वो खाना बनाने योग्य नहीं थे, वो खाना बनाने में असमर्थ होंगे. दे विल बी अनेबल टू कुक. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पैटर्न हियर, दैट इज यूज्ड टू. जनरली लोग यहाँ पर यूज्ड टू की जगह हैबिचुअल ऑफ भी बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो फाइन, विच इज टेलिंग अस द हैबिट. किसी भी चीज़ की जब हम आदत की बात करते हैं, देयर वी यूज यूज टू और हैबिचुअल ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश. सो इन दिस पैटर्न वी आर स्टार्टिंग आवर सेंटेंस विद सब्जेक्ट, देन वी आर एडिंग एजमआर और हेल्पिंग वर्ब्स, देन यूज टू और हैबिचुअल ऑफ. यू कैन यूज एनी. आफ्टर दैट वी विल यूज वर्ब आईएनजी इन दिस पैटर्न एंड आर अदर वर्ब्स. सो व्हेनेवर आई हैव टू से मुझे इंग्लिश सीखने की आदत है, आई एम यूज टू लर्निंग इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश. खाना बनाने की आदत है, ही इज यूज टू कुकिंग. हमें पढ़ने की आदत है, वी आर यूज टू स्टडिंग. यही हम अगर बात करें पास्ट की, सो वी विल से वॉज वर्ड एंड इन फ्यूचर विल बी. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम यूज टू टीचिंग. उन्हें पढ़ने की आदत है, दे आर यूज टू स्टडिंग. उन्हें पढ़ने की आदत थी, दे वर यूज टू स्टडिंग. उन्हें पढ़ने की आदत हो जाएगी, दे विल बी यूज टू स्टडिंग. मेरे भाई को किताब पढ़ने की आदत है, माई ब्रदर इज यूज टू रीडिंग बुक. मेरे भाई को किताब पढ़ने की आदत थी, माई ब्रदर वॉज यूज टू रीडिंग बुक. मेरे भाई को किताब पढ़ने की आदत हो जाएगी, माई ब्रदर विल बी यूज टू रीडिंग बुक. सो यूज टू इज यूज फॉर हैबिट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पैटर्न, दैट इज You are ordered to first form and other words. जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, so in that case we will use this pattern. Now we can use it in 3 different ways, like for order, request and advice. जब भी आपको बोलना है कि आपको वहाँ बैठने का ऑर्डर दिया जाता है, you are ordered to
sit there. Now here we are using only first form. If I say आपसे वहाँ बैठने की रिक्वेस्ट की जाती है, so you are requested to sit there. And if I say आपको मेहनत करने की एडवाइस दी जाती है, you are advised to work hard. Similarly, we can take few more examples. उन्हें मेहनत करने का ऑर्डर दिया जाता है, उन्हें नोट्स लिखने का ऑर्डर दिया जाता है. They are ordered to write the notes. You are ordered to prepare notes. You are advised to prepare notes or you are requested to prepare notes. आपसे नोट्स बनाने की रिक्वेस्ट की जाती है, आपको रिक्वेस्ट की जाती है नोट्स बनाने की, और आपको ऑर्डर दिया जाता है नोट्स बनाने के लिए, और आपको नोट्स बनाने की एडवाइस दी जाती है. सो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए वी विल यूज दिस पैटर्न कि ऐसा करने का ऑर्डर दिया जाता है, ऐसा करने की रिक्वेस्ट की जाती है और ऐसा करने की एडवाइस दी जाती है. Another one is develop the habit of. जनरली हम लोगों को बोलते हैं आप इस चीज़ की आदत डालिए, हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए. जब आप सामने वाले को बोलते हैं आप जल्दी उठने की आदत डालो, develop the habit of waking up early. तो सेंटेंस पूरा याद रखना है. The only thing is ing. We just have to put ing in this whole sentence. So develop the habit of waking up early. Develop the habit of making notes while watching this video. Develop the habit of speaking English. Develop the habit of reading books. So here whole we will use ing. Develop the habit of reading books, speaking, writing. So here we are talking about आदत डालिए. जब भी हमें किसी काम करने की आदत डालनी है, we will simply say develop the habit of doing this. We will simply use ing. यही अगर हम बात करें इस चीज़ की आदत मत डालिए, so for that we will say don't develop the habit of plus verb first form ing and our other words. For example, लेट उठने की आदत मत डालिए. Don't develop the habit of getting up late. If I say don't develop the habit of abusing, गाली देने की आदत मत डालिए, लड़ने की आदत मत डालिए. Don't develop the habit of fighting. किसी भी चीज़ की आदत अगर नहीं डालनी है तो for that we will say don't develop the habit of ing and other words. Let's talk about another pattern. That is all about फायदा नहीं है. जब भी हम कहते हैं कि ऐसा करने का फायदा नहीं है या ऐसा करना बेकार है, there we talk about it's no use ing and other words. For example, बाहर जाने का फायदा नहीं है, it's no use going outside. टीवी देखने का फायदा नहीं है, इट्स नो यूज वॉचिंग टीवी. उनसे पूछने का फायदा नहीं है, इट्स नो यूज आस्किंग देम. तुमसे तो बहस करने का फायदा ही नहीं है, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विद यू. फायदा नहीं है या बेकार है, विल से इट्स नो यूज ing एंड अदर वर्ड्स. लास्ट पैटर्न फॉर द डे इज गुड एट और बैड एट. जनरली हम कभी गलती करते हैं, गुड इन बोल देते हैं. जब भी हमें किसी चीज़ के लिए बोलना है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं इस चीज़ में बुरा हूँ, so there we will say I am good at dash or I am good at something. For example, if I have to say मैं English में अच्छा हूँ, I am good at English. यही अगर मुझे बोलना है कि मैं English बोलने में अच्छा हूँ, so I would say I am good at speaking English. If I have to say मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ, I am good at playing cricket. और मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, I am good at cricket. अगर किसी और के लिए बोलना है कि वो उसमें अच्छा है, he is good at something. For example, he is good at swimming. वो स्विमिंग में अच्छा है. He is good at music. वो म्यूजिक में अच्छा है. वो म्यूजिक प्ले करने में अच्छा है, गाने बजाने में अच्छा है. He is good at playing music. वो पियानो में अच्छा है. He is good at piano. वो पियानो बजाने में अच्छा है. He is good at playing piano. यही अगर हम बात करें बैड की, so we can say वो इंग्लिश में बुरा है. He is bad at English. वो इंग्लिश बोलने में बुरा है. He is bad at speaking English. वो लिखने में बुरा है. He is bad at writing. So I hope you learned a lot of patterns today and it will be a very useful video for you. And if yes, then don't forget to subscribe our channel. And I have one thing for you. You have to tell me what are you good at and what are you bad at in the comment section.